Hello friends, welcome to Northeast PSC Institute. Today the topic that we are going to do is important for your mains exam. So आज के टॉपिक के थ्रू हम कोशिश करेंगे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को समझने का। और ये हमारा टॉपिक है GS2 पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशन का। और टॉपिक का नाम है हमारा नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो आपने सुना होगा और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। और ऑब्वियसली आपकी एक इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आजकल हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और ऑब्वियसली कहीं कहीं भी किसी देश में कुछ भी किसी तरह का भी इंसिडेंट होता है तो उसका इनडायरेक्ट अफेक्ट इंडिया को भी होता है। तो जरूरी ही इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना और इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस डायमेंशन को अंडरस्टैंड करने का। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, अभी रिसेंटली ईरान हैज एक्चुअली अटैक्ड विथ मिसाइल टू Israel. So the region is very important strategically because of the energy resources. Almost 60 to 70% energy resources of India actually come from that Gulf region. So if that region is unstable, then it will actually create some sort of difficulty in India also. It might lead into the inflation kind of situation. It will actually create some sort of difficulty for the people of India. So therefore it is important to understand and study the international relations, not only just to qualify this exam but also to have a broader knowledge about the things and incident that are taking place across the world. So today the topic that we have chosen is non-aligned movement. So okay, so let's start the topic. Yeah, before I start, let me tell you again the courses that here we are already running. So we are running here two kind of courses: prelim course and the prelim cum mains course. I've already discussed number of time that it contains these papers, and these will be the features like you will be getting the live classes, recording of the live classes, interview guidance for the pre-cum mains aspirants. Weekly tests will be conducted for you. That will be quite helpful to understand the syllabus and also develop your clarity on it. PDF notes and practice quizzes will be given, mock tests will be given, and obviously you will be taught with the experience by the experienced faculty. So when it's come to the prelim cum mains course, so here we are covering all GS. That include GS 1, 2, 3, 4, right? Beside this, we are also including the essay writing English qualifying paper, right? So here we will try to actually or make your preparation quite organized and relevant. Okay, so we know that the syllabus काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। अगर हम अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे और हम प्रिपरेशन करते रहेंगे और टाइम जाता रहेगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गाइडेंस एंड द ऑर्गेनाइज्ड preparation so that you could be able to qualify this exam with a good rank, right? So these are some of the features. अगर आपको if you need any kind of information, any inquiry, you can contact to us with our WhatsApp group 6009526554. So please, whatever you have the doubt related to the preparation strategy and the syllabus and topic, you can contact to us, right? So here we have also the QR code. You can scan it and you can directly join the prelim our demo batches. Yes, the topic we have actually today taken, it's an important topic. Yeah, the topic is NAM. In short, we say NAM. Okay, so before we start, it is important to understand the background behind the name. Okay, so we understand we got independence in the year 1947 in most of the world, be it your Africa, Latin America, Southeast Asia, and almost all the world. Most of these world were colony of the some of the European and the Western country, right? So be like for example, India was the colony of the Britain. At the same time, many African countries were colony of the Portugal, Spain, France, Germany, UK, right? So situation was difficult for the so-called developed third world. So the world was now categorized during the time the first world and the third world. The first was the world west, and the second world is your third world, especially the Africa, Southeast Asia, Latin America. These were termed as a third world country. So अगर हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड जानना किसी भी इशू के पीछे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं
तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ना बैकग्राउंड को समझे। अगर हम बैकग्राउंड को समझेंगे तो इश्यूज को अच्छे से समझेंगे और जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उन टॉपिक्स पर उनको अच्छे से अप्रिशिएट भी करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड को समझने। तो नैम का बैकग्राउंड हम समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1946 में ऑलमोस्ट कंक्लूड हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं जो एक लीग ऑफ नेशन आता है, बट वो फेल्ड। उससे पहले लीग ऑफ नेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बट जो इंटरनेशनल सिनेरियो आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ, वो देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और उससे पहले जो ब्रिटेन था इट वाज सुप्रीम पावर, उसकी हेजिमनी चलती थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, चाहे मिलिट्री पावर हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो। बट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम हम देखते हैं कि अलाइड एंड एक्सेस पावर का था कॉम्बिनेशन, एंड जो विनिंग पार्टी थी जो हेडेड बाय द यूके। सो उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पावरफुल कंट्री एमर्ज होती है, उसमें से दो इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्री एमर्ज होती है। एक है आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दूसरी थी यूएसएसआर, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 के अंदर। तो उसको बोला जाता था सोवियत संघ। तो हमारे पास देखते हैं दो कंट्री थी हमारी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वी हैव यूएसए was one of the most powerful country, and next was the USSR. It is also called Soviet Sangh, Soviet Union. See, so these two countries were important country both in terms of military power, be it the military power, economy, technology, टेरिटरी। सो इन अगर इन डायमेंशंस पे देखें तो यूएसए कैपिटलिज्म का प्रोपेगेटर था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे। बट यूएसएसआर किसका प्रमोटर था? कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। और इनका अपना जो सिस्टम था अपने, दे वर फाइटिंग इनडायरेक्टली विथ ईच अदर, एंड दैट पीरियड वाज कॉल्ड द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर हैपन हुआ। कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश होती है। क्या होती है? बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी क्या है? इट्स मीन there were two center of power. One was headed by the USA and other was USSR, that is also called Soviet Union. So they were actually fighting with each other, and that particular scenario was called the Cold War. So Cold War was a situation where both these entities were not fighting directly with each other, rather they were fighting indirectly. So there was alliance, there were satellite states. So satellite states थे इन कंट्री के। जैसे देखेंगे यूएस ट्राई कर रहा था इन्फ्लुएंस करने का कई सारी कंट्री को। तो कई सारी कंट्री, जैसे हम देखेंगे वेस्ट की कंट्रियों को यूएस ने, अब यूएस के इन्फ्लुएंस में रहा, जहाँ पे इन्होंने क्या प्रमोट किया? लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। और ये चाहते थे, इट वाज आल्सो आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजी क्या थी कि लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म की जो यूएस था इसका नेता, इसकी नेतागिरी यूएस कर रहा था, और आज के टाइम पर यूएस इसकी नेतागिरी करता है। और हमारा जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की नेतागिरी कौन कर रहा था? हमारा यूएसएसआर। देखो, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एंड यू कैन से सोशलिज्म। सोशलिज्म आता है, फिर कम्युनिज्म आता है आपका। तो कम्युनिज्म जैसे कंप्लीट स्टेट कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। बट लिबरल डेमोक्रेसी इज कॉन्ट्रारी टू दिस। तो कार्ल मार्क्स आप देखते हैं सोशलिज्म जो है उसके एक बहुत बड़े स्कॉलर भी माने गए हैं। और उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन हम देखेंगे, उसके बाद आपका एडम स्मिथ लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सारी लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर था कि भाई डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म को बढ़ाना है, यूएसएसआर कम्युनिज्म को बढ़ाना है। तो हम देखते हैं ये अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में देवर फाइटिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आज दो इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा था यूएसएसआर का, और आपका साउथ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा था किसका? यूएसए का। तो हम देखेंगे साउथ कोरिया का सिस्टम काफी लिबरल, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी आज के टाइम पर। नॉर्थ कोरिया का थोड़ा कम्युनिज्म, अब तो डिक्टेटरशिप है, बट उस समय काफी इन्फ्लुएंस था। वियतनाम का भी हम देखेंगे, वियतनाम में भी लड़ाई चल गई थी इनकी। कुछ हिस्सा वियतनाम का यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस था, कुछ हिस्सा आपका यूएस था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखेंगे,
जर्मनी में वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द योर यूएसएसआर एंड द वेस्ट जर्मनी वाज द लिबरल कैपिटल्स डेमोक्रेसी। तो कई तरह के हमारे यहाँ पे देखेंगे प्लान, फाइनेंशियली यूएस हेल्प करता था इन कंट्री को जिनको पैसे की जरूरत थी, वो, और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करता था फाइनेंशियली, मिलिटरली। यूएस वर हेल्पिंग इन द सेम वे यूएसएसआर वाज हेल्पिंग, सो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर indirectly. So that particular scenario was called the Cold War. So we also had an incident of the Cuban Missile Crisis that happened in the 1961. So that was also one of the वेरी सेंसिटिव टाइम, जहाँ पे बिल्कुल चांस था कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी यूएस और यूएसएसआर के बारे में, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और जिसमें दुनिया तबाह हो जाएगी। बट एक्चुअली कुछ स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाए गए और उस न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं किया गया, राइट। तो कुछ टेंशन आता है और फिर ठीक होता है। इसी के बीच में हम देखते हैं जो न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री हो रही थी, जैसे उनमें से एक इंडिया था, जो 1947 में इंडिया को क्या मिला, आज़ादी मिला। तो इंडिया वाज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। सो देखो, उससे पहले देखें ब्रिटिशर वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट, बोथ इकोनॉमिकली, मिलिटरली, सोशली। दे हैड जस्ट डिस्ट्रॉयड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट। सो वी नीड टू हैड the challenge before the newly independent country like India was, mass poverty, eradication of the poverty, food security, economic stability, human resource development, industrialization, these challenges थे। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्रंच भी थी, और ऑब्वियसली और हम नए नए आज़ाद भी होते, हमारे साथ पार्टीशन का भी इशू था। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में हमें सपोर्ट चाहिए था एक ऐसे कंट्री का जो हमारी इकोनॉमिकली मदद कर सके। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मदद करने के लिए पार्टी तैयार थी, यूएस तैयार था, यूएसएसआर तैयार था, बट ये था कि अगर हम किसी से मदद लेते हैं तो उन्हीं की बात मानेंगे और उन्हीं के फेवर में चले जाएंगे या उन्हीं के ग्रुप में चले जाएंगे। बट हमारे जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बड़े ही वॉज अ विजनरी, उन्होंने देखा भाई अभी जस्ट हम आज़ाद हुए, हमारे अपने चैलेंजेस है, अगर हम कोल्ड वॉर राइवलरी में चले जाएंगे और किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो खतरे में आ जाएगी, जिसको हमने बड़ी 200 सालों की लड़ाई के बाद अपने आप को इंश्योर किया है इंडिपेंडेंस। तो इट इज नॉट इन गुड साइड एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर द इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू, वी वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ईदर साइड, रेदर विल रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह से कुछ लाइक माइंडेड कंट्री आती है, उसमें से हम देखते हैं हमारे इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, घाना के प्रेसिडेंट देखेंगे हम, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट देखेंगे, युगोस्लोवाकिया के हम प्रेसिडेंट देखेंगे। तो सब मिलते हैं और एक कॉन्फ्रेंस होता है बैंडगन देखो, एशिया अफ्रीका, एक कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, जिसको बैंडगन कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। और ये कहाँ पे हुआ था, 1905 में, 1955 में हुआ, और ये कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। और फाइनली इन जो लीडर थी, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री थी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ना कोल्ड वॉर जैसे सिनेरियो में जो राइवल कंट्री है किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे अपने आप को, रेदर हम अपनी इंडिपेंडेंस है, हमारी सोवरेनिटी है, सोवेरियन इक्वालिटी है, उसको इंश्योर करेंगे। अगर हम किसी के एक का साइड लेते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाएगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ये सारे लीडर मिलके जो एशिया अफ्रीका बैंडगन कॉन्फ्रेंस होता है इंडोनेशिया में 1955 में, तो क्या फॉर्म करते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट क्या किसकी नींव रखते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट की। तो पहला नॉन अलाइंग मूवमेंट समिट जो हुआ था बेलीग्रेड में हुआ, यूगोस्लोवाकिया में, और 1961 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट नेम समिट टुक प्लेस इन द बेलीग्रेड in the year 1961. This can be important. And at the same time, how many member were there? 120 member. आज के टाइम में देखिए 2018 तक 120 मेंबर हैं हमारे नेम कंट्री के। उसके साथ हम और भी चीजें देखेंगे। या तो अगर हम देख कॉन्टिनेंट में देखो 53 कंट्री आपको अफ्रीका से मिलेगी, 39 मिलेगी एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका से मिलेगी, राइट, 17 मिलेगी, एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्वर है एट नेम। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन state that did not seek to formally align themselves with either the United States or the Soviet Union। अभी हमने ये डिस्कस किया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था
एक्चुअली पर्पस। तो नॉन अलाइनमेंट फॉर्म किया गया और इसका मतलब जो नॉन अलाइन कंट्री होगी वो किसी एक ग्रुप में नहीं जाएगी, ना ही यूएसएसआर के साथ जाएगी, ना ही यूएसए के साथ जाएगी। रेदर सब एक साथ रहेंगे और जो उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट है, जैसे मेंटेनिंग एंड इंश्योरिंग द सॉवरेन इनक्वालिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सब आपस में मिलके काम करेंगे और अपने को डेवलप करेंगे, राइट, रेदर देन उन फाइटिंग में जाके फंसेंगे यूएस और यूएसएसआर की। ये कुछ हमारा बैकग्राउंड था नेम के पीछे। आइए हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को समझते हैं। यस, तो पहला समिट हमने देखा बेलीग्रेड में हुआ 1961 में, और लीडरशिप ऑफ जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया और गमाल अब्दुल नासेर ऑफ द इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया एंड क्वामे निकारुआ ऑफ द घाना एंड सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट लीडर थे, फाउंडर लीडर थे नैम के। सो इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नैम, दैट इज नाउ अलाइंग मूवमेंट, राइट। अब देखिए पर्पस क्या है, देखिए भाई पर्पस क्या था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म होती है उसका कुछ पर्पस था। तो हमने जैसे बात किया कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री आजाद हो रही थी, कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल रही थी, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हो चुका था, और कई सारी कंट्रियां जो थर्ड वर्ल्ड थी, जैसे इंडिया हो, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, अफ्रीका की कंट्री, लैटिन अमेरिका की कंट्री, सब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से बाहर आ रही थी। तो जरूरी था उनके इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी को बरकरार रखना। तो पहला पर्पस यही था। तो देखिए पर्पस क्या है, द नेशनल इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉन अलाइन कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस थे। पर्पस क्या थे भाई, इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना, सॉवरेनिटी को बनाए रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना, और ऑब्वियसली जो नॉन अलाइन कंट्री की जो इंटीग्रिटी सिक्योरिटी उसको भी मेंटेन रखना। ये इंपॉर्टेंट पर्पस थे, इनिशियल पर्पस थे आपके किसके, नॉन अलाइन मूवमेंट के। तो इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद हम देखते हैं और भी कुछ पर्पस है। दे कलेक्टिवली फॉट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। जैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में प्रेशर, जो ग्रुप था, इंडिया वाज द लीडिंग ग्रुप, लीडिंग कंट्री व्हेन इट्स कम टू द नाम। तो इंडिया कलेक्टिवली वेरी advocated for the independence of the South Africa and many African country from the era of colonialism by the European imperialism। इसके खिलाफ आवाज उठाना, imperialism, इंटरनेशनल पीस की बात करना, इंटरनेशनल पीस स्टेबिलिटी की बात करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना। तो इंडिया और जो नैम की कंट्री थी इन मुद्दों पे बात करती थी कि भाई ये चीजें जरूरी है हमारे लिए, राइट। तो देखेंगे हम या, तो देखिए और क्या कि स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म हम देखेंगे जो जैसे आज के टाइम में कई सारी कंट्री है जो नई अपने कैपिटलिज्म को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रही है, और बट एक्चुअली उनको कॉलोनी ही बना रखा है। कई सारे अफ्रीकन कंट्री आज भी हमारे न्यू कॉलोनियलिज्म से ग्रसित है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नेम प्लेड अ वाइटल रोल। देखो कोल्ड वॉर का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, सॉरी नैम का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है कोल्ड वॉर के टाइम पर। को नेम नेम एक रीजन भी था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर का थोड़ा सा वीक पड़ा, और ऑब्वियसली वॉर जैसे सिनेरियो नहीं हुए ऑब्वियसली। तो इट हैड प्ले अ वेरी गुड रोल व्हेन इट्स कम टू दी स्टेबलाइजिंग दी वर्ल्ड ऑर्डर। सो वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबलाइज करने में, इंटरनेशनल रूल एंड ऑब्वियसली लॉ को अपहेल्ड करने में नैम का काफी ज्यादा रोल रहा है। हम देखेंगे आगे। नॉन अलाइंग ऑफ नैम डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट ऑन अ ग्लोबल इशू। सो देखिए नॉन अलाइंग का मतलब ये नहीं कि न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब कि कोई अगर मेजर इशू हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, या कोई गलत काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें नैम की कंट्रियां कुछ नहीं बोलेंगी, न्यूट्रल रहेगी, नहीं। ये बिल्कुल पर्पज नहीं था नैम का। बल्कि जहां पे जैसे कुछ गलत चीजें हो रही थी, जैसे कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म अफ्रीका के अंदर, तो नैम की कंट्री ने बड़े ही तेज आवाज में, बड़े ही स्ट्रांग आवाज में इसके खिलाफ आवाज उठाई, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, मार्केट एक्सेस के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, और काफी काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। तो ग्लोबल इश्यूज पर नैम कंट्री बोलती है ताकि इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे। ये नहीं कि भी कुछ नहीं बोलना है। पीसफुल, देखो पीसफुल इंटरवेंशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ऑलवेज NAM was always in the favor of peaceful intervention in the world politics. So that is also very important dimension when it's come to the NAM.
ओके अब तो हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ पर्पस है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ प्रिंसिपल है, उस पर काम करती है। और नैम एक अर्ली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके कुछ अपने पर्पस भी थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे। उन प्रिंसिपल्स पे हम बाकी जो नैम की कंट्री थी काम की, और ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को छोड़ा। तो कुछ पर्पस अगर देखेंगे तो नेहरू वॉज अ फाउंडर ऑफ नैम, तो कुछ पर्पस क्या है कि भाई रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल एंश्योर्ड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द डायलॉग एंड नेगोशिएशन की बात करता है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता है, उसको अपहेल्ड करने की बात को यहाँ पे एक प्रिंसिपल बनाया गया। रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री थे, कोल्ड वॉर का सिचुएशन था, दो पावरफुल कंट्री आपस में लड़ रही थी इनडायरेक्टली, तो और इन्फ्लुएंस कर रही थी पैसे से, मिलिट्री से। तो ऐसे में ऐसी कंट्री जो अलाइंग हो जाती किसी भी एक पावर के साथ, तो उसका इंडिपेंडेंस तो चला गया, सॉवरेनिटी चली गई। तो इसको मेंटेन करना एक प्रिंसिपल था। सोवेरियन इक्वालिटी की बात थी। सोवेरियन इक्वालिटी क्या है? सारी कंट्री जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री, सब एक दूसरे को कंट्री माने और रिस्पेक्ट करे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कंट्री की बाउंड्री है उसको, उसका इंटीग्रिटी बना रहा है, ये नहीं कि कोई बाउंड्री लड़ाई करके छीन ले या कोल्ड वॉर की वजह से बाउंड्री लॉस हो। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो कंट्री कई सारी है, सबका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, पॉलिटिक्स है, सबको रिस्पेक्ट करना इतनी डाइवर्सिटी को। डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर इंटरेस्ट क्या है? इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जस्टिस, कोऑपरेशन, ये सारी चीजों को प्रमोट करना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम ऑफ स्टेट, मतलब बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना, एक दूसरे की बात सुनना और एक दूसरे की हेल्प करना नीडी टाइम में कंट्रीज को। ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखो कितने होलिस्टिक, कितने कॉम्प्रिहेंसिव पॉजिटिव प्रिंसिपल्स थे हमारे नाम के। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, तो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की बात है कि भाई कोई भी नेम की जो कंट्री है, अगर किसी के खिलाफ कोई अटैक करता है तो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के तौर पर उसको जवाब भी दिया जा सकता है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, तो अब नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अ कंट्री, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नाम का। जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर थे नाम का, अगर पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, इंडिया में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा। नो स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ राइट टू इंटरवीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी एक कंट्री जो नाम के है, किसी एक कंट्री के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्रमोशन ऑफ डिफेंस एंड मल्टीलेटरलिज्म को, मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे। बाय, देखो बाय, अब मल्टीलेटरलिज्म इंपॉर्टेंट था, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, शेयरिंग ईच अदर गुड स्टफ, एंड ऑल्सो इंश्योरिंग द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, सॉवरेन इक्वालिटी। सो मल्टीलेटरलिज्म जरूरी है। जैसे यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल बॉडी है, जहाँ पे सारी कंट्री है, सबको सॉवरेन इक्वालिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे, जैसे हमारा ब्रिक्स भी मल्टीलेटरल रीजनल बॉडी है, G20 मल्टीलेटरल बॉडी है, जहाँ पे कई सारी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स के सब आपस में मिलते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रिंसिपल थे नैम के, जिसपे नैम काम किया और काफी ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। अब आगे देखते हैं इसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स को। Okay, so we have just studied the purpose. Now the time has come to study the objective. So objective, we have studied the principles, purpose. Now objective. So when we talk about the objective of the NAM, so we need to actually understand that one of the objective was the NAM has sought to create an independent path in world politics that would not result in a member state becoming pawns in the struggle between the major power. So name का एक objective क्या था भाई? याद रखिए कि भाई जो यूएस है इधर और जो यूएसएसआर है इधर, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना। हमें इंटरनेशनल पीस की बात करनी है, स्टेबिलिटी की बात करनी है, सॉवरेनिटी की बात करनी है, राइट। आइडेंटिफाई द राइट इंडिपेंडेंट जजमेंट, स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, मॉडरेशन इन रिलेशन विद द बिग पावर्स, जो बिग पावर है यूएस, रशिया, चाइना, उनके साथ, सॉरी जो यूएस है, जो हमारी यूके है, जो हमारी ऑब्वियसली यूएसएसआर थी, उनके साथ एक मॉडरेशन रिलेशन बना के रखना, दुश्मनी वाला रिलेशन नहीं बनाना। चाहे ठीक है कि हम भाई किसी के ग्रुप में नहीं जाएंगे, ना ही यूएस के साथ जाएंगे, ना ही यूएसएसआर के
साथ जाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम दुश्मनी पैदा कर ले यूएस के साथ या यूएसएसआर के, नहीं। एक पॉजिटिव रिलेशन हम स्टैब्लिश कर, नैम कंट्री कोशिश करेगी एक पॉजिटिव रिलेशन स्टैब्लिश करने की, किसके साथ, यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ, कोई दुश्मनी नहीं, बस पॉजिटिव रिलेशन। तो हम दोस्ती किससे, नैम की कंट्री दोस्ती यूएस से भी करेगी और यूएसएसआर से भी करेगी, दुश्मनी नहीं करेगी किसी एक से, और ना ही किसी एक के साथ जाएगी। तो मॉडरेशन की बात है। सो गोल इज ऑल्सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की हम बात करेंगे। दे कलेक्टिवली दे हैव आल्सो डिमांडेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है न्यू। सो जो नैम की कंट्री ने ये क्या था भाई, जो मार्केट एक्सेस है, हम अभी अब जस्ट इंडिपेंडेंस हुए, जो हमारी इकोनॉमी है, हमें भी वेस्टर्न कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है उनके मार्केट का एक्सेस दो, टेक्नोलॉजी दो, सपोर्ट दो, ताकि हम भी ग्रो करें और डेवलप करें। तो ये जस्ट वी स्टडी दी ऑब्जेक्टिव, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नैम इन द कोल्ड वॉर। आई जस्ट वी हैव डिस्कस दैट नैम का क्या काम था भाई कोल्ड वॉर में, नैम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से नैम ने कंट्रीब्यूट किया कोल्ड वॉर के टाइम पर। तो ये इंपॉर्टेंट देखो, अगेंस्ट द अपार्थाइड। तो अपार्थाइड क्या था भाई, साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा ये एक्चुअली चल रहा था अपार्थाइड। जो वाइट थी ब्रिटिश पॉपुलेशन, जो वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की ब्लैक थी, तो रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना कि यू आर ब्लैक and we are a white, we are superior us than you, and we there cannot be the equality between the black and the white. So it was a very brutal form of racial discrimination that was actually happening in the South Africa under the British colonialism. And same was the case whenever the European colonizer were there in the Africa, be it the Portugal, Spain, German, French, whenever they had the colony during that time, so they had this practice racialism, apartheid. So it was a very brutal form. So now together collectively that they raised voice against the apartheid, and India was one of the most important voice. Because of that, it was abolished, and South Africa also got independence. Yeah. So apartheid was massively prevalent in African country, as just we have discussed. So yeah, during the second M conference, Cairo, the government of South Africa was warned against the discriminatory practice of apartheid. So this was also one of the very important. So this was taking place during a time of cold war and disarmament. This is important. So देखो disarmament का मतलब होता है कि भाई मेरे पास जो वेपन है, जो आपके पास जो वेपन है, सबको कम करना, वेपन्स डिफेंस इक्विपमेंट को कम करना। लड़ाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी लड़ाई, वेपन जो है लड़ाई करने के लिए, अगर वेपन ही हम कम करें, जैसे न्यूक्लियर वेपन होते थे उस समय, बड़े बड़े बॉम्ब होते थे, मिसाइल्स होते थे, तो सबको कम करना, डिसआर्मामेंट को भी। जो नैप की कंट्री थी उन्होंने डिसआर्मामेंट के लिए भी आवाज उठाई, तो इंडिया उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस था न्यूक्लियर को खत्म करने का। न्यूक्लियर वेपन वुड अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसकी बात की कि भाई न्यूक्लियर वेपन है जो इंटरनेशनल पीस स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, तो इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, राइट। एंड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, तो इसको प्रोहिबिट करो, डिसआर्मामेंट को प्रोहिबिट करो। तो पहला अपार्थाइड के खिलाफ नैम के टाइम पे इन्होंने बोला, दूसरा डिसआर्मामेंट, मतलब जो वेपन है, न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको कम करो, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो इसको प्रोहिबिट करना जरूरी। एक और चीज, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात की, हम देखते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो विक्टोरियस कंट्री थी उनको परमानेंट मेंबर बनाया गया, 5 परमानेंट मेंबर जिनको वीटो है। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, तो इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी उस समय की, या अभी भी हम देखेंगे जो अफ्रीका से एक भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो जो रिप्रेजेंटेशन है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का काफी मिनिस्कल है, साउथ का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। हम देखें यूरोप की 2 कंट्री, फ्रांस, यूके, छोटी छोटी कंट्री वो मेंबरशिप बने हुए हैं, राइट। तो अभी भी कोई ना, वी डो नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लैटिन अमेरिका और द अफ्रीका। So that is also we need to increase the representation. So NAM country collectively also talked about the United Nations Security Council reform. ठीक है, it want the representation of third world country to make United Nations security more democratic. तो member echo the same demand at the
named the 17th NAM summit that took place in Venezuela. अभी recently हमारे पास 19 हुआ था आर्मेनिया में, बाकू में. It failed to resolve the regional tensions also. The era of Cold War also, the South Africa escalated due to the regional conflict between India, China and India, Pakistan. तो देखो NAM के कुछ आउटकम तो थे, बट ये फेल भी हुआ कई मायने. आपस में नेम की कंट्रियों में कंसेंसस नहीं रहा, ट्रस्ट खत्म हुआ, क्रेडिबिलिटी खत्म हुई और लड़ पड़े. इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ. ईरान को देखेंगे हम, ईरान इराक वॉर में ईरान ने स्पेस को यूज किया उसको. तो बोथ वर मेंबर बट दे सपोर्टेड द यूएसए. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेलियर ऑफ द नैम. यस, अब इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि बिकॉज इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नैम, एंड आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ही रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट द colonialism, imperialism, disarmament, apartheid, okay, and talked about sovereign equality at the international level and international fora. So at the same time, it is also raises its voice against the reform in the United States Security Council. That is also one of the very important issue. So yeah, so India was a founder and the largest member of the NAM and active participant in the NAM. Okay, so देखो अब देखेंगे डिसइंटीग्रेशन, अब देखेंगे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. मतलब यूएसएसआर जो सोवियत संघ था वो 20 कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है. जैसे आज के हमारे पास उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सारी यूएसएसआर की टाइम पार्ट थी, बट डिवाइड हो जाते हैं, सब इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती हैं. 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होता है जिसमें यूएस एक हेजिमन पावर बन के निकलता है कि भाई यूएस ही सबसे बड़ा. पहले तो यूएसएसआर था जो बैलेंस कर रखा था यूएस का बाइपोलैरिटी, अब वो भी खत्म, तो यूएस एक सुप्रीम हेजिमन सुपर पावर बन के निकला. बट उसके बाद कुछ फिर देखते हैं सिचुएशन जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज होती है. आज का वर्ल्ड ऑर्डर हमारा क्या रिफ्लेक्ट करता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे एक पोल नहीं है पावर सेंटर का कहीं, ताकि मल्टीपल पोल्स है. हमारे पास चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ब्राजील है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो जापान है. सो दीज आर मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर ऑल्सो. तो सो अगर हम देखो इंडिया का देखेंगे ना कॉन्टेक्स्ट नेम के मामले में, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है थोड़ी इनएक्टिव रही है नैम को लेके आफ्टर द कोल्ड वॉर. एक्चुअली जब हुआ तो नैम, इंडिया वाज नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड विद द नैम. इनफैक्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो बोलते हैं कि नैम वाज अ एरा ऑफ कोल्ड वॉर टाइम. नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज, वी नीड टू एक्चुअली talk about some new things. So now we are actually talking about the strategic autonomy. So that's a very important keyword आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं. strategic autonomy. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है भाई अलाइंग, हम ऐसी कंट्री से अलाइनमेंट करेंगे, जुड़ेंगे जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा. तो अलाइनमेंट में कोई इशू नहीं है, बट अलाइन करेंगे हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, राइट. फॉर एग्जांपल देखिए यूएसएसआर के, यूएस के साथ भी हमारे रिलेशंस है, रशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, राइट. हम एससीओ के भी मेंबर हैं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एंटी वेस्ट कहा जाता है या एंटी अमेरिका कहा जाता है. उसके साथ में ब्रिक्स के भी मेंबर है, क्वाड के भी मेंबर है. तो देखो इंडिया, दिस इज ऑल बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट. सो आफ्टर द कोल्ड वॉर इंडिया इज नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड इन दी नैम, एंड हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम हुआ और हाई लेवल विजिट नहीं होती नैम पर. बाकू जो 19 समिट हुआ था, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर गए हुए थे, बट फिर भी बस आज के टाइम में जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है और कंसेंसस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है उस लेवल पर. तो सब कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को लेके देख रही है और अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कर रही है, और इंडिया भी उसी पे चल रहा है. बट ऑब्वियसली नैम की अपनी यूटिलिटी हम देखेंगे, रिलेवेंस है या नहीं है, तो ये भी जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. तो यस, तो देखो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20 एंड हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर पावर. देखो नैम ने पहले बात की थी डिसआर्मामेंट की, बट इंडिया भाई न्यूक्लियर पावर अटेंड कर गया. क्यों? सिचुएशन ऐसी थी, चाइना से हमारे पास थ्रेट था, अभी भी थ्रेट है पाकिस्तान चाइना से, तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से न्यूक्लियर पावर को भी एक्वायर कर लिया जो अगेंस्ट है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का. तो स्टैंड देखो पहले क्या था, अब कैसे चेंज हो रहा है. इंडिया ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी समिट को ज्वाइन किया. तो बोलता था कि नैम मेंबर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन, रादर दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड obviously we'll talk about their collective interest. तो इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द क्वाड, तो ये भी अगेंस्ट जाता है.
Shanghai Cooperation मैंने जस्ट आई जस्ट डिस्कस विथ यू. इंडिया इज ऑल्सो स्ट्राइविंग हार्ड फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको. देखो आज का जैसे हम आर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर always talk about today we are living the era of the multipolar world order, and we need to have a strategic autonomy so that we could be able to engage with the like-minded country and thereby serve our national interest. So that is very very important. तो आज का जो वर्ल्ड है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है. एक ही कोई पावरफुल कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही. हम देखेंगे पाकिस्तान हमारे हम देखेंगे वी हैव अ यूएसए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री. उसके साथ साथ चाइना हैज आल्सो actually attain the stature of the superpower country in the world. Russia is there also. India is one of the power center. Japan is one of the power center. Australia is power center. Brazil is power center. So we have a multiple poles of powers. कोई एक पावर या कोई दो पावर सेंटर नहीं रहा. जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे दो ही पावर थी, दो ही पावरफुल सुप्रीम कंट्री थे वर्ल्ड में, यूएस और यूएसएसआर. बट उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड आता है. तो या मल्टीपोलर वर्ल्ड है और ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट है कंट्री के वो सर्वोपरि है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी जा रही है. So just we have discussed. देखो, the gravity of international politics has actually transferred passed from the Atlantic to the Indo-Pacific. Now we are seeing Indo-Pacific has been very very importantly used. Indo-Pacific. तो यूएस की जो पॉलिसी है या वेस्टर्न कंट्री की जो पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में ज़्यादा फोकस है. क्यों फोकस है? क्योंकि हम देखते हैं राइज ऑफ चाइना. चाइना हैज अटेन द स्टेचर ऑफ द सुपर पावर कंट्री. नाउ इट हैज बिकम द राइवल ऑफ द यूएसए बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड द इकोनॉमी. अब ए बी एक्सपेक्टेशन है, कई सारी रिपोर्ट्स बोलते हैं कि कुछ आने वाले फ्यूचर में चाइना नंबर वन इकोनॉमी बन जाएगा और यूएस को रिप्लेस कर देगा. तो ये यूएस का जो इंटरेस्ट है, जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी चाइनीज़ पॉलिसी से. आज भी देखेंगे चाइना का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो उसके ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसीज़ है, इकोनॉमी पॉलिसीज़ है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज पोज करता है यूएस के इंटरेस्ट को लेके और ऑब्वियसली बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है यूएस का उसको भी. तो ये भी एक चेंज हो रहा है. देखो इंडो पैसिफिक में टेंशन, चाइना का राइज होना, यूएस यूएस की पॉलिसी आ गई है पूरी चाइना को कर्व करने के लिए, चाइना को रिस्ट्रेंट करने के लिए, चाइना को ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रेंट करने के लिए इंडो पैसिफिक में यूएस आया है. और जैसे कंट्री इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक माइंडेड कंट्री एंड वी ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट विद ऑब्वियसली चाइना. सो वी आर ऑल्सो फाइंडिंग अ गुड प्लेस. सो दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद द क्वाड ऑल्सो. तो चेंजिंग यूएस पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म पे ज़्यादा जोर दे रहा है यूएसए. प्रिवेलेंट ऑफ टेररिज्म, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द मिडल ईस्ट, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप लाइक टीटीपी, आरसीपी. ये सारी चीज़ें फेडिंग अवे द मल्टीलेटरल बॉडी लाइक डब्ल्यूटीओ. तो रीजनल लेवल पर जो ग्रुपिंग बन रही है, जैसे आपकी आरसीपी बन रही है, उसके साथ आप और देखोगे टीटीपी, तो हमारी जो मल्टीलेटरलिज्म है उसके अगेंस्ट है सारी चीज़ें. देखो द लार्ज स्केल माइग्रेशन यूरोप टू एशिया इज ऑल्सो अनस्टेबल regime, ethnic conflict, terrorism, protectionism, anti-globalization moves. So these all are some of the emerging things that are contrary to the international peace and order. Now still you see the two country, be it your Ukraine and Russia is fighting, and at the same time in the Gulf region Israel and Iran is fighting, Hamas is fighting. So this is not good context. प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है. सो देयर इज नो स्टेबिलिटी. इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मल्टी जैसे जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्चुअली get that particular thing by cooperating with a like-minded country also. नाउ द वन क्वेश्चन कम रिलेवेंस ऑफ द नैम. तो हमने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि नैम वाज रिलेवेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, बट नाउ वी हैव चेंज, इट हैज चेंज. नाउ वी आर लिविंग द एरा ऑफ द
पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बट कुछ जो स्कॉलर्स हैं, कुछ जो आपके एक्सपर्ट है, बोलते हैं नैम का रिलेवेंस है इंडिया के लिए, कुछ बोलते हैं नैम का रिलेवेंस नहीं है। तो कुछ जो बोलते हैं नैम का रिलेवेंस नहीं, वो बोलते हैं कि नैम एक कोल्ड वार के टाइम पे था, अब वो कोल्ड वार चला गया, जो हमारी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो चुकी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। तो इसमें हमारे पास एक मल्टीपल अलाइनमेंट्स की जरूरत है, डिफरेंट कॉपरेशंस की जरूरत है। वी नीड टू हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ऑब्वियसली रीजनल लेवल की कॉपरेशंस की बात करते हैं। और कंसेंसस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है नेम जैसे ग्रुप में, जहाँ पे हम देखेंगे इनफैक्ट नेम की कंट्री आपस में फाइट कर रही है, तो कंसेंसस बिल्ड करना डिफिकल्ट है। और नेम्स का कुछ खास आउटकम नहीं रहा है आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो ये इसकी वजह से कुछ बोलते हैं नैम रिलेवेंस ही नहीं है, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नैम रिलेवेंस है। जैसे आज के टाइम में हम नए नए जो इश्यूज है द वर्ल्ड इज फेसिंग, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, इंटरनेशनल पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, एंड ग्लो ऑब्वियसली द फूड सिक्योरिटी इश्यूज, टेक्नोलॉजी, इन सब पर अगर नैम की कंट्री इकट्ठे होके कलेक्टिव वॉइस में प्रेशर क्रिएट करे थर्ड वेस्टर्न कंट्री पर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो नैम काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इंडिया एक लीडरशिप दे सकता है नैम को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इक्विटी है, क्लाइमेट जस्टिस है, क्लाइमेट ऑब्वियस पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के फेवर में चीजें हैं, उन उन मुद्दों पर काफी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है नेम के थ्रू। तो नेम का रिलेवेंस क्लाइमेट चेंज में हो सकता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करें तो जो 120 मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो एक कलेक्टिव वॉइस में अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की, तो एक प्रेशर भी क्रिएट होगा रिफॉर्म होने पर, तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूटिलिटी हो सकता है। उसके बात करते हैं जैसे सिनेरियो चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, इसराइल और ईरान की चल रही है, उस केस में भी यूनाइटेड नेशन के अंदर हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ऐसी कंट्री पर, और जो ऐसे मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि उसका कोई और गलत फायदा ना उठाए। तो नैम का यूटिलिटी भी है, बस यही कि उसको अच्छे से समझा जाए, और इंडिया एक लीडरशिप रोल दे सकता है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस के में हमने जस्ट बात किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस, जो आज का जो वॉर वाला सिनेरियो है उसको उसको सॉल्यूशंस उनका निकालना, और इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में साउथ टू साउथ कोऑपरेशन, जैसे इंडिया ने अभी लास्ट ईयर G20 के समिट पर अफ्रीकन यूनियन को एक G20 का मेंबर बनाया, तो ये भी साउथ टू साउथ कोऑपरेशन की बात करता है। साउथ टू साउथ कोऑपरेशन में हमारे नैम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की हम बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेके, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नैम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट बनाएगी। इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, जो सॉवरेन इक्वालिटी है उसमें नैम प्रमोट इक्विटेबल ऑर्डर, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिजिंग between the political and the ideological difference in international environment। इंटरेस्ट डेवलपिंग कंट्री के WTO में जो इंटरेस्ट है, जो मार्केट एक्सेस को लेके है इंटरेस्ट डेवलपिंग कंट्री का, ये डेवलप्ड कंट्री कई बार मार्केट एक्सेस नहीं देती, अपने इम्पोज करती है रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिससे जो हमारी डेवलपिंग कंट्री के प्रोडक्ट है वेस्टर्न कंट्री में पहुंच नहीं पाते। तो WTO में रिफॉर्म की बात हो या मार्केट एक्सेस की बात हो, उसमें नैम की कंट्री आपस में कलेक्टिव वॉइस में इस मुद्दे को काफी स्ट्रांगली रख सकती है। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, ह्यूमन राइट्स को लेके बात करें, तो इसको भी काफी ज्यादा बल मिल सकता है नेम की सारी कंट्री एक साथ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो फाइनेंस की जरूरत है, उसमें नेम की कंट्री आपस में सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्री पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो भी रिसोर्सेज को एक सस्टेनेबल में यूज करें, और ऑब्वियसली और हमारी एनवायरनमेंट को कंजर्व करे, प्रोटेक्ट करे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बात कर सकते हैं कंट्री में ट्रांसपेरेंट फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन इन ऑब्वियसली FDI की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। यस, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो नेम को जैसे मैंने बताया, नैम इंडिया एक लीडरशिप दे सकता है, और नैम की यूटिलिटी को अभी भी जगाया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करेंगे, विच इज द नीड ऑफ द आर टुडे वर्ल्ड, द प्रिंसिपल ऑफ नैम can still guide the nation toward it. That's also important. NAM is a platform where India can assert a soft power and provide active leadership, and being the torchbearer for a small country at the multilateral forum. Just we discussed.
अलाइनमेंट मूवमेंट समिट टू बी हेल्ड इन अजरबैजान जो 2019 में हुआ और बाकियों में हुआ फॉर कंसेंसस मेकिंग ऑन स्पेक्ट्रम द ग्लोबल इशू इट शुड बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू रेज ग्लोबल इशू लाइक टेररिज्म क्लाइमेट चेंज trade protectionisms. NAM platform can be used to garner support by Southeast Asian countries like Vietnam, Malaysia, Indonesia, Chinese against the Chinese assertion. So NAM can also provide a platform for Afro-African cooperation, right? Healthy negotiation with the China and the USA for economic development without compromising the sovereignty of their लैंड सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं नैम के कॉन्टेक्स्ट में. So this is all about NAM. I hope you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe our channel. At the same time, for any kind of a inquiry, you can contact to us. We will be happy to help you out. Thank you for your support. Thank you.